الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا وارث بنا جائے گا وہ ایسا ہو کہ اس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد ہو، اور اس کے بھائی یا بہن ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو وہ سب کے سب ایک تہائی مال میں شریک ہوں گے، اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اس طور پر کہ قرض یا وصیت سے نقصان اور مضرت کا قصد نہ کیا گیا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعینہ حصے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے اور بردبار ہیں۔ دو آیتیں مسائل میراث سے متعلق ہیں۔ یہ جو آیت پڑھی گئی اس کا آدھا حصہ گزشتہ ہفتے ہو گیا تھا۔ میراث کے متعلق اس کے اوپر کے احکام میں سب سے پہلے بیٹیوں کا اور بیٹوں کا حصہ ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی آیت میں والد اور والدہ کا کیا حصہ ہوگا وہ بیان کیا گیا، اور دوسری آیت کے شروع میں شوہر کے وفات کے بعد بیوی کا اور بیوی کی وفات کے بعد شوہر کا کیا حصہ رہے گا گزشتہ ہفتے کے درس میں وہ بیان کیا گیا تھا۔ ابھی جو آیت کا جز وہ پڑھا گیا ہے، آیت کا آدھا حصہ، اس میں میت کے بھائی اور بہن سے متعلق میراث کے احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور وہ کلالہ ہو، کلالہ کہتے ہیں ایسا شخص جس نے اپنے پیچھے نہ اولاد چھوڑی ہے اور نہ والدین چھوڑے ہیں، یعنی اس کی نہ اولاد ہے، مذکر مؤنث کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے والدین میں سے کوئی ہے، نہ والدہ ہے نہ والد، جس کو ہم لوگ کہیں گے اس کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے۔ اصول کہتے ہیں اپنے سے اوپر والوں کو، باپ دادا والدہ، اور فروع کہتے ہیں اپنے سے نیچے والوں کو، بیٹے پوتے پوتیاں، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ تو جس کے نہ اصول ہوں اور نہ فروع ہوں، نہ والدین ہوں نہ اولاد ہوں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کلالہ۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد ہوں، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، جس کا انتقال ہوا، اب اس کی میراث کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ اس کی میراث کے حقدار اس کے بھائی اور بہن ہیں۔ پہلے نمبر پر وارث بننے والوں میں اولاد ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر والدین ہوتے ہیں، اور یہ سب نہ ہو اگر تو پھر اس کے بعد بھائی بہن کا نمبر آتا ہے۔ میت کے بھائی اور بہن، اس آیت میں جو بھائی اور بہن کا ذکر ہے یہ ماں شریک بھائی بہن ہوتے ہیں۔ بھائی اور بہن تین طرح کے ہوتے ہیں، تین رشتے ہوتے ہیں بھائی بہن کے۔ ایک تو ہوتے حقیقی بھائی بہن۔ حقیقی بھائی بہن کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے والد بھی ایک ہوں والدہ بھی ایک ہوں، جس کو ہم لوگ حقیقی کہتے ہیں، ماں اور باپ شریک کہتے ہیں،
और एक भाई बहन होते हैं बाप शरीक, जिसको इस्तिलाह में अल्लाती भाई बहन कहते हैं, यानी उनके वालिद एक हों लेकिन आपस में वालदा अलग अलग हो, उसको बाप शरीक कहते हैं, अल्लाती कहते हैं। और एक होता है अखियाफी भाई बहन, जो उसके बरस से उसके उल्टा है, उनकी वालिदा एक हो, वालिद अलग अलग हो। ऐसे होता है कि अगर वालिद ने मुतअद्दिद निकाह किए तो अलग अलग बीवियों से बच्चे जो होंगे उन सबकी माँ अलग अलग रहेगी, बाप एक रहेगा, उनको बाप शरीक कहेंगे। उनको बाप एक हो, माँ अलग अलग। कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनकी वालिदा एक है, शौहर के इंतकाल के बाद औरत ने किसी और से निकाह कर लिया, तब उसके जो दूसरे शौहर से बच्चे होंगे वो लोग आपस में माँ शरीक रहेंगे, माँ एक रहेगी, बाप अलग अलग रहेंगे। तो माँ शरीक को अखियाफी कहते हैं, बाप शरीक भाई बहन को अल्लाती कहते हैं, और जिसके दोनों एक हों माँ और बाप, उनको हकीकी भाई बहन कहते हैं। सबके अहकाम अलग अलग है। यहाँ पर जो हुक्म बयान किया गया है अखियाफी भाई बहन से मुताल्लिक है, मस्जिद के माँ शरीक भाई बहन। हकीकी और अल्लाती जो भाई बहन है उनके अहकाम इसी सूरह निसा के आखिरी आयत के अंदर जिक्र किया गया। आखिर में 2 आयतें मिरास से मुताल्लिक और आएगी, वहां पर हकीकी और अल्लाती भाई बहन का तस्करा है। यहाँ पर जो भाई बहन का जिक्र है ये अखियाफी है माँ शरीफ, अगर जो कुरान शरीफ की आयत में उसका जिक्र नहीं है, ऐसा सराहतन कहा नहीं गया कि माँ शरीफ भाई बहन का जिक्र, लेकिन फिर कैसे तफसील बयान की गई, क्योंकि उन दोनों आयतों के अंदर हकीकी और अल्लाती का जिक्र है। उससे मुफस्सिरीन ने कहा कि इस वाली आयत के अंदर अखियाफी यानी माँ शरीफ भाई बहन का ही जिक्र है, दोनों के हिस्से अलग अलग है। तफसील ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो कि उसके ना औलाद हो और न वालिदैन, माँ शरीक भाई बहन हो, मस्जिद के माँ शरीक भाई बहन अगर एक हो, यानी चाहे भाई एक हो चाहे बहन एक हो, सिर्फ एक हो, तो उसका हिस्सा यह है कि उसके मस्जिद के छोड़े हुए कुल माल में सुदुस यानी छठा हिस्सा दिया जाएगा, 1/6। कुल माल को 6 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उसको दिया जाएगा, चाहे एक भाई हो चाहे एक बहन, दोनों सूरतों में अगर एक हो तो। और अगर ये लोग एक से ज्यादा हों, एक से ज्यादा कितने भी हों, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, भाई बहन कितने भी हों, तो कुल माल का 1/3 उनको दिया जाएगा, वो 1/3 सब में तकसीम होगा, सबको अलग अलग 1-1 तिहाई नहीं देंगे। मस्जिद के माल के 3 हिस्से करेंगे, उसमें से 1/3 एक जो हिस्सा होगा वो इनको देंगे, उसमें जितने लोग रहेंगे सब तकसीम करेंगे बराबर बराबर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मिरास के तमाम मसाइल में सिर्फ ये सूरत होती है कि इसमें लड़का लड़की बराबर के शरीक होते हैं, वरना आमतौर से ऐसा होता है कि जितना लड़की को मिलता है उसके डबल लड़के को मिलता है। लेकिन इस सूरत में जो मस्जिद के बाप माँ शरीक भाई बहन है जितने भी रहेंगे 1/3 के अंदर सबको बराबर बराबर दिया जाएगा, कम ज्यादा किसी को नहीं दिया जाएगा। इनकी यही 2 सूरतें हैं, माँ शरीक भाई बहन रहेंगे तो उनको विरासत के मिलने की 2 ही सूरत है, अगर एक हो तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा, और अगर एक से ज्यादा कितने भी हों तो 1/3 उनको देंगे, वो 1/3 के अंदर सब लोग बराबर तकसीम कर लेंगे। और तीसरी सूरत इनके महरूम होने की है, वो क्या है, जब भी मस्जिद की औलाद होगी या वालिदैन होंगे तो ये लोग महरूम होंगे, इनको नहीं मिलेगा। इनको मिलने की सूरत यही है कि मस्जिद की ना औलाद हो और ना वालिदैन। अगर मस्जिद की औलाद वालिदैन रहेंगे तो फिर इनको माँ शरीक भाई बहन को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। बाप शरीक या फिर इसी तरीके से हकीकी जो भाई बहन होते हैं उनका हिस्सा ये नहीं है, उनका हिस्सा ये होता है, जैसे बेटी के बारे में ऊपर बयान किया गया कि अगर लड़की हो सिर्फ हकीकी बहन या अल्लाती बहन सिर्फ एक हो तो उसको कुल माल का आधा हिस्सा मिलता है। कुल माल को 2 हिस्से में तकसीम करके आधा मुकम्मल उसको मिलेगा एक बहन को, और आधा दूसरे वर्षा में तकसीम होगा। और अगर एक से ज्यादा हो तो कुल माल के 2/3 हिस्से, जिसको 2 सुलूस कहते हैं, 2/3, कुल माल के 3 हिस्से करके 2 हिस्से उन लड़कियों को दिया जाएगा बहनों को। और अगर भाई बहन साथ में हो
तो फिर जैसे बेटे और बेटियों का हिस्सा होता है वैसे होगा। इस तरह तकसीम करेंगे कि जितना एक बहन को मिलेगा उसका डबल एक भाई को मिलेगा। ये ज़करी मिस्र हज़्ज़िल उनसयैन के तरीके पर। उसका तफसीली तज़किरा आखिर के आयतों में आएगा। यहाँ पर सिर्फ ये समझिए कि जो माँ शरीक भाई बहन हैं उनका हिस्सा ये कि अगर एक हो तो कुल माल का छठा हिस्सा, और अगर एक से जायद हो तो एक तिहाई के अंदर सबको बराबर बराबर दिया जाएगा। वसीयत की हो तो वसीयत की अदायगी के बाद, और कर्ज हो तो उसकी अदायगी के बाद। जितने भी ऊपर से मीरास की सूरतें बयान की गई, बच्चों को मिलने की, वालिदैन को मिलने की, बीवी और शौहर को मिलने की, सब में ये कैद बार बार लगाई गई है कि जो भी विरासत तकसीम होगी मिन वसीयतिन, वो वसीयत अगर मस्जिद ने की हो तो उस वसीयत की अदायगी के बाद और कर्ज की अदायगी के बाद। आयतों के अंदर तरतीब में वसीयत का पहले तज़किरा है, कर्ज का तज़किरा बाद में है, लेकिन हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब ये बतलाई है कि कर्ज की अदायगी का नंबर पहले है, वसीयत की अदायगी का नंबर बाद में है। शुरू में जब ये आयतें शुरू की गई थी वहाँ पर बताया गया था कि मस्जिद के माल से जो हुकूक मुताल्लिक होते हैं वो तरतीब वार है। सबसे पहला तजवीज़ तकफीन का है, मस्जिद के माल में से उसका कफन दफन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर कर्ज की अदायगी का है, कर्ज की अदायगी मुकद्दम है। कर्ज की अदायगी के बाद अगर रकम बचेगी तो एक तिहाई माल में वसीयत नाफिज होगी। जो मरहूम ने वसीयत की है उस वसीयत के मुताबिक माल खर्च किया जाएगा, और वसीयत की अदायगी के बाद जो माल बचेगा वो मस्जिद के वरसा में तकसीम होगा। तो तरतीब में आयत में पढ़ने के अंदर वसीयत का जिक्र पहले, कर्ज का जिक्र बाद में है, लेकिन ahकाम के लिहाज से पहले कर्ज की अदायगी होगी, उसके बाद वसीयत का निफाज होगा। वसीयत के मसाइल में पहले ही बयान किया गया कि वसीयत के लिए ज़रूरी मसाइल हैं। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि वसीयत सिर्फ एक तिहाई माल में नाफिज होगी। जितना भी माल मस्जिद के पास है, मरहूम के पास है, उसके 3 हिस्से करके एक हिस्से में ही वसीयत कर सकता है। उससे ज़्यादा में उसको वसीयत करने का इख्तियार भी नहीं है, और अगर वसीयत कर भी दे तो उसकी बात कल अदम है, गैर मोतबर है। वो चाहे लिख दे, दस्तखत कर दे, गवाह बना दे, बहरहाल एक तिहाई माल से ज़्यादा में उसको इख्तियार है नहीं। शरीयत ने सिर्फ एक तिहाई माल में वसीयत की इजाज़त दी है, उसी में वसीयत कर सकता है। दूसरी चीज़ ये बताई गई थी कि वारिस के लिए वसीयत नहीं होगी। जो शख्स माल में वारिस बनने वाला है, पहले से शरीयत ने उसको वारिस करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर वारिस को उसका हिस्सा दे दिया है। फला वसीयत लिवारिसिन, लिहाजा अब किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं है। मतलब मरहूम ने अगर अपने किसी वारिस के हक में वसीयत किया हो और ये कहा हो कि मेरे फला बेटे को इतना माल मेरे तरके में से दे देना, उसकी ये बात कल अदम होगी, गैर मोतबर होगी, तो चाहे जिसके सामने कहा हो। बहुत से लोग क्या कहते हैं, गवाह लेकर के आते हैं कि हमारे वालिद ने इस तरह कहा था कि एक चीज फला बेटे को दे देना, तो वो कहाँ भी हो तब भी गैर मोतबर है। इसलिए कि बात वो मोतबर होगी जो शरीयत के मुताबिक रहेगी। जब शरीयत ने फैसला कर दिया कि वारिस के लिए वसीयत मोतबर नहीं है तो वसीयत करे तब भी उसके एतबार में होगा। हाँ, एक सूरत है कि अगर तमाम वरसा इस बात पर राजी हो जाएं कि जो वसीयत वारिस के लिए की गई है इसको हम लोग नाफिज करने पर राजी हैं, तो कर सकते हैं। तमाम वरसा जितने भी हैं सब इस बात पर बखुशी राजी हों कि वालिद ने, मरहूम ने जो वसीयत की है हमारे फला भाई या फला बहन के हक में, उस पर हम लोग राजी, हम लोग सब उसको नाफिज करते हैं। और उसमें शर्त यह है कि सब बालिग हों, तो उस वसीयत को नाफिज कर सकते हैं। कोई एक वारिस भी अगर नाबालिग होगा तो फिर उस वसीयत को नाफिज नहीं कर सकते। नाबालिग की इजाज़त का भी एतबार नहीं है, आप उससे पूछ नहीं सकते कि इजाज़त है या नहीं। नाबालिग का कौल गैर मोतबर, जब वो बालिग रहेगा जब उसकी बात मोतबर होगी। तो तमाम वरसा बालिग हों और अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से सब राजी होकर के उस वसीयत को नाफिज करें तो नाफिज कर सकते हैं। गैर मुज़ार ऋण का मतलब यह है कि कर्ज की अदायगी या वसीयत के निफाज में किसी को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा ना हो। मतलब इसका यह है
बहुत से लोग वसीयत करते हैं वरसा को नुकसान पहुंचाने के लिए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसकी औलाद है, औलाद नाफरमान है, वो ये चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को माल में से कुछ ना मिले, तो वो क्या कर देगा, अपने माल की वसीयत कर देगा कि फला मस्जिद में दे दो, फला मदरसे में दे दो, फला गुरबा में तकसीम कर दो। तो उसका मकसद नेक नहीं है, उसका मकसद अपने वारिस को महरूम करना है। तो अगर वसीयत करो भी तो अच्छे मकसद से करो, ये हुक्म दिया गया है। अपने वरसा को महरूम करने की नीयत से मत करो। अगर तुम एक तिहाई माल के अंदर भी वसीयत करोगे, लेकिन मकसद ये है कि मैं वसीयत कर दूं ताकि मेरे वर्षा को माल कम मिले, तो ये गैर मुजारिम, ये तुमने मजर्रत को नुकसान पहुंचाने के लिए वसीयत की, इससे तुमको कोई फायदा नहीं होगा, कोई नेकी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से बहुत से लोग झूठे कर्ज का इकरार कर देते हैं ताकि कर्ज की अदायगी के अंदर माल सर्फ हो जाए और वर्षा को माल ना मिले। मसलन वफात से पहले किसी शख्स ने कहा कि मेरे फला दोस्त का मेरे ऊपर इतना कर्ज है, वो कर्ज अदा कर देना, हालांकि है नहीं, वो सिर्फ इसलिए कह रहा ताकि माल कर्ज में चला जाए तो वर्षा को ना मिले। तो वर्षा को महरूम करने की गर्ज से झूठे कर्ज का इकरार कर लेना, या ये कह देना कि मेरे ऊपर फला की अमानत है, उसको अदा करना है, किसी भी तरीके से सोचना कि वर्षा को माल न मिले, नाजायज दुरुस्त नहीं है। औलाद अगर नाफरमान भी है तब भी तुमको शरीयत ने इख्तियार नहीं दिया कि तुम उनको विरासत से महरूम करो, इसलिए कि विरासत का हक शरीयत की तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह है, हमारी अपनी तरफ से नहीं है। ये शरीफ में है कि अगर कोई शख्स अपने वारिस को विरासत से महरूम कर दे, इसके लिए सख्त वईद है, अल्लाह ताला उससे क़यामत में गिरफ्त फरमाएंगे। तो मजर्रत के अंदेशे से ना कर्ज का इकरार करे और ना ही नुकसान पहुंचाने के लिए कोई वसीयत करे। वसीयत मिनल्लाह, तो जितने भी अहकाम ऊपर से विरासत के जिक्र किए गए हैं सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुतअय्यन कर दिए गए हैं, इसमें हम जरा भी कमी बेशी नहीं कर सकते। मुकर्रर कर देने का मतलब यह है कि मरहूब ने अपने विरासत में, अपने तरके में जितनी भी चीजें छोड़ी हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो, रुपया 2 रुपया हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, तमाम चीजें तरका हैं और तमाम चीजों को इन ही बयान किए गए हिस्से के मुताबिक तकसीम करना जरूरी है। इस तरह तकसीम कर लेना कि तुम फला चीज ले लो, तुम फला सामान ले लो, तुम फला घर ले लो, इस तरह दुरुस्त नहीं है। तमाम चीजों की मुकम्मल कीमत, मुकम्मल रकम निकाल करके उसको इन हिस्सों के मुताबिक तकसीम करना शरअन जरूरी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी को कुछ पूछना, कोई बात किसी को समझ में ना आई, कुछ पूछना।